Good evening, students. Welcome to our session. In this session, we are going to discuss the wave nature of matter, and this is the first lecture for wave nature of matter. And I will try on my best कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ कि वेव नेचर का मीनिंग क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो कि मैटर हैज़ टू टाइप ऑफ नेचर. ओके, so in the unit number 7th we have studied about two types of nature, two types of nature of matter, that is okay, two types of nature we have discussed. First one is particle nature. During the particle nature we have seen photoelectric effect. Particle means the matter consists of small particles like electrons type particles, and electrons are emitted. So this is the particle nature. You can say particle nature. First of all, for the particle nature we have which effect? We have the photoelectric effect and we have the Compton effect, that is not in syllabus. Compton effect is also there, but that is not in syllabus. So here I am discussing the two types of matter, two types of nature of matter. One nature is particle nature, that is described by photoelectric effect, and the another type of nature, that is wave nature, that we will discuss in this lecture as well as in the upcoming lectures. So another one is wave nature. Now we have to know what do you mean by wave nature. Okay, firstly let me describe you what is particle nature. So particle nature, photoelectric effect is there. Suppose this is a matter, it contains small particles, that can be electrons also, that can be protons also. But why electrons are emitted? Because electrons are in the outermost orbit. Electrons are the easiest to remove. So these are the electrons, and these electrons are emitted by which effect? When we incident the light on this surface or on this matter, then some electrons are emitted, and that are called photoelectrons, and the effect is called photoelectric effect. Hope you have studied about it in the unit number 7. If you have not if you are not known about this effect, then you have to watch my earlier lectures. So this is photoelectric effect. That means the effect which defines the particle nature of matter, that is photoelectric effect. And the effect that describes the wave nature, that is removed from your syllabus. That effect is that is a experiment that is called Davison German experiment. So this experiment Davison German, so दो साइंटिस्ट थे, उनका एक एक्सपेरिमेंट था जिससे हमें प्रूव हुआ वेव नेचर. उससे पहले हमें डी ब्रोगली ने थ्योरी दी. सो डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट, दिस एक्सपेरिमेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम द सीबीएसई सिलेबस नाउ, बट वी विल डिस्कस. हम देखेंगे, अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम डिस्कस जरूर करेंगे. सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट दैट प्रूव्स द wave nature. So for the wave nature we have Davison German experiment, and for the particle nature we have the photoelectric effect. I hope it is clear, है ना. And photoelectric effect means the matter consists of some electrons and some particles, and that particles are removed, and this we have studied using photoelectric effect. So photoelectric effect ने हमें प्रूव किया कि मैटर के पास पार्टिकल नेचर होती है. And the Davison German experiment showed us that the particle has wave nature also. So particle nature के बारे में हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं. Not in this lecture we are going to discuss wave nature. So suppose this is a ball, this is a small ball, and this ball is traveling along straight line. मैंने इसको क्या किया, इस साइड थ्रो कर दिया, इस साइड राइट साइड पे, ठीक है. सो दैट मीन्स इस बॉल को, ये बॉल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, ये थोड़ा सा ऐसे वेव की फॉर्म में जाएगी, ऐसे ऐसे वेव की फॉर्म में. बट ये वेव हमें विजिबल होगी या नहीं होगी, दैट इज़ अ पॉइंट. तो एवरी बॉडी विच हैज़ मास, कोई भी बॉडी है जिसके पास मास होगा, कोई भी बॉडी है जिसके पास मास होगा,
दैट विल शो वेव नेचर, तो वो एक वेव नेचर शो करेगी। पहली बात आपने नोट करनी है, वेव नेचर कौन शो करेगा? जिसके पास मास होगा। सो वेव नेचर वो शो करेगा जिसके पास यहाँ पे मास होगा, फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद चेक करना है हमें कि कौन कौन शो करेगा, ठीक है। जैसे सपोज लेट्स टेक, एक तो वेव नेचर हो गया। अच्छा जी, हमें हाइपो दिया किसने? ये हमें दिया डी ब्रोगली ने। डी ब्रोगली नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना आइडिया दिया हमें कि हमारे पास कोई थ्योरेटिकल उन्होंने बोला कंसेप्ट नहीं है, बट डी ब्रोगली ने ये बताया कि हमारे पास एक कोई भी बॉडी होगी जिसका मास होगा, ठीक है, जिसका कोई मास होगा, उसको क्या शो करेगी? वेव नेचर। एंड इसको इसीलिए बोला जाता है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब कि जो चीज़ हमें मतलब हम प्रूव नहीं कर पाए बट हमें लग रही है, ठीक है। सो डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस इट इज़ कॉल्ड। तो दो चीज़ें क्लियर हो गई आपको आई थिंक। जिस भी बॉडी का मास होगा, एवरी बॉडी विच हैज़ मास दैट विल शो द वेव नेचर, वो वेव नेचर शो करेगी। और इसी को बोलते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ने हमें, डी ब्रोगली ने हमें ये कंसेप्ट दिया, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ लेट्स टेक वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम जिसके थ्रू आपको पता लगेगा कि वेव नेचर हमें वेव किसकी शो होगी किसकी नहीं होगी, ठीक है। सो लेट्स टेक वन एग्जाम्पल, एक हम हैवी बॉडी लेते हैं जो हमने लिया यहाँ पे एक पर्सन, ठीक है। सो दिस इज लेट्स सपोज मोहित, और मोहित का हमने वेट लिया, ठीक है, दिस इज मोहित एंड मोहित का वेट है 100 kg, 100 kg। और हमें एक मास के साथ साथ ये भी पता लग गया कि बॉडी कैसी होनी चाहिए, बॉडी मोशन में होनी चाहिए। बॉल हमने देखा ना, यहाँ पे बॉल थी हमारे पास, सो दैट बॉल वाज नॉट इन रेस्ट, दैट बॉल वाज मूविंग। तो जब बॉल मूव करेगी तब वो इन द फॉर्म ऑफ वेव मूव करेगी। सो दैट मीन्स दो कंडीशंस थी एक्चुअली, मास तो होना ही चाहिए बॉडी का, मास के साथ साथ वेलोसिटी भी होनी चाहिए, मतलब बॉडी क्या होनी चाहिए? इन द मोशन। तो बॉडी का मोशन भी होना चाहिए और बॉडी का मास भी होना चाहिए। आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियर मोर, थोड़ा अच्छे से ज़्यादा क्लियर हो गया होगा कि बॉडी मूव भी करेगी और बॉडी के पास मास भी होगा, ठीक है। तो दो चीज़ें अभी क्लियर हो गई आपको। बैक एंड नाउ दिस पर्सन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद द वेलोसिटी, हम ले लेते हैं, ज़्यादा तो नहीं भाग पाएगा तो 10 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं। वैसे किलोमीटर में निकालोगे काफ़ी आ जाएगी इसकी वैल्यू, बट हमने अज्यूम कर लिया कि 10 मीटर पर सेकंड जा रहा है, ठीक है। 10 मीटर पर सेकंड काफ़ी स्पीड होती है वैसे, ठीक है। सो 10 मीटर पर सेकंड। अब डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस हमें क्या बताता है? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस टेल अस दैट वेवलेंथ ऑफ मैटर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी नोट करना बच्चे। में लैम्डा इज इक्वल टू, वेवलेंथ किसके इक्वल होगी? एच अपॉन एम वी, या फिर एच अपॉन, पहले हम लिख लेते हैं एच अपॉन मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम को हम लिखते हैं पी से, और इसी रिलेशन को हम थोड़ा सा अगर मोमेंटम की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है? मैं थोड़ा इरेज करता हूँ यहाँ पे, वेट करना, प्लीज़ वेट फॉर 1 मिनट, ठीक है, थोड़ा सा वेट करना। हाँ, अभी एक बार रिलेशन कंप्लीट लिख लें। सो लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, पी वेयर पी इज मोमेंटम, और मोमेंटम की वैल्यू मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम इज इक्वल टू एम इंटू वी। सो एच बाय एम वी, दिस इज द रिलेशन फॉर वेवलेंथ ऑफ बॉडी। तो ये रिलेशन हमें मिला, एक बार नोट कर लें इसको। सो दिस इज द रिलेशन फॉर वेवलेंथ, ठीक है, दिस इज द रिलेशन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन मोमेंटम, एच अपॉन पी एंड एच अपॉन एम वी। नाउ लेट्स सी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब हमने ये तो चेक कर लिया कि हमें मिल गई, ठीक है, वैल्यू। चलो इस पर्सन की निकालते हैं। सो लैम्डा एम मीन्स मोहित की जो वेवलेंथ है वो कितनी होगी बच्चे? एच की वैल्यू पुट करेंगे तो 6.62, आपको अगर पता हो प्लैंक्स कांस्टेंट, 6.62 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है। तो -34 यहाँ पे, और नीचे आएगा मास ऑफ बॉडी, तो मास ऑफ बॉडी हमने लिखा 100, और इसके साथ आएगा हमारा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हमने लिख ली 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सो आई होप इट इज़ क्लियर, सारा कुछ क्लियर है आपको जो भी लिखा हमने।
तो इस वेवलेंथ को फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज नियरली अबाउट, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसकी वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻³ -37 मीटर। सो दिस वेवलेंथ वैसे होती क्या है बच्चे, अभी वो भी डिफाइन करेंगे। अभी एक बार आपने इस वैल्यू को देख लिया 6.62 इंटू 10⁻³ -37 मीटर, इतना आपको क्लियर हो गया आई थिंक। यहाँ तक नोट कर लें प्लीज़, यहाँ तक नोट कर लें प्लीज़। So this is the important relation from de Broglie's hypothesis, lambda is equal to h upon p, that is h upon mv. So p is what? p is momentum। तो momentum जो भी होगा बॉडी का उसके ऊपर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। सपोज आपको बोल दिया दो बॉडीज़ हैं, दूसरी फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम ज़्यादा है, दूसरी का कम है, तो किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी? तो जिसका मोमेंटम कम होगा उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। तो इस तरह के कुछ पॉइंट्स होंगे जो आपके साथ अभी डिस्कस करेंगे, तो यहाँ तक नोट कर लें पहले। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रेज दिस वन। ओके ठीक है, जो मोहित था, मोहित की वेवलेंथ आई 6.62 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³। ठीक है, अब एक वेवलेंथ का हमारे पास डेफिनेशन भी होती है, मैं आपको थोड़ा डिस्क्राइब करूंगा उसको। सो वेवलेंथ इज व्हाट, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है लाइक दिस वन, यहाँ से सपोज दिस बॉल इज मूविंग एंड इट इज़ मूविंग इन दिस वे। एक मिनट वेट करना, थोड़ी सिमेट्री बना के। ओके चलो यहाँ तक ठीक है। ओके चलो यहाँ तक भी ठीक है। सो बच्चे व्हाट इज़ वेव, तो वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ, ये तो हमारी वेव हो गई है ना पूरी, ये जो मोशन है इट इज़ कॉल्ड वेव। व्हाट डू यू मीन बाय वेवलेंथ? दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो दो क्रस्ट या दो ट्रफ जो होते हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो देखो दो हाई वैल्यूज़ के बीच में कितना डिस्टेंस, मतलब कितना गैप है, दैट इज़ वेवलेंथ। तो देखो कितना कम गैप है। हाँ, नेक्ड आई के साथ हम इस लाइट वेवलेंथ को नहीं देख सकते। जैसे सपोज मोहित मूव कर रहा है, तो मोहित 10 मीटर से कर रहा है या 20 से कर रहा है, हमें वो हैवी बॉडी जो भी होगी उसका हमें जो है वो नहीं दिखेगी। ठीक है, वेव नहीं दिखेगी। नेक्ड आई के साथ हम उसको नहीं ऑब्जर्व कर पाएंगे कि दैट बॉडी इज शोइंग द वेव नेचर। तो वेव नेचर शो कौन करेगा? फिर ये भी क्वेश्चन है ना हमारे पास कि वेव नेचर अगर हैवी बॉडी नहीं शो कर रही, ठीक है, हमारे पास ये मोहित था, ये शो नहीं कर रहा, ये हमारे पास एक रोहित है, वो शो नहीं कर रहा, तो शो कौन करेगा? ठीक है, सो दैट इज इट। अब ये देखना होगा, तो हम ले लेते हैं ऊपर देखो एच है हमारे पास, और नीचे भी अगर एच के बराबर की कोई वैल्यू मिल जाए तो हमारे पास वेवलेंथ कोई वैलिड सी मिल जाएगी, है ना। देखो ध्यान से, अभी ऊपर है 6.62, ठीक है 6.62, और 10 की पावर कितनी है? -34, 10⁻⁻34। तो नीचे क्या है? देखो नीचे मेरे पास मास है और वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी तो इतनी नहीं हो सकती, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है? लाइट की वेलोसिटी के बराबर 3 × 10⁸। फिर भी देखा जाए तो मास बहुत छोटा चाहिए। दैट मीन्स अगर जितना छोटा मास होगा, सपोज मास मेरे पास है 10⁻⁻50 में, 10⁻⁻50 में, आप अज्यूम करके देखना एक बार इसकी वेवलेंथ जो है वो 10 की पावर पॉजिटिव आएगी, 10 की पावर पॉजिटिव। तो वो वेवलेंथ जो है दैट वेवलेंथ विल बी विजिबल, वो वेवलेंथ हमें दिखाई देगी, अदरवाइज हमें कोई वेवलेंथ दिखाई नहीं देगी। एक बार कैलकुलेट करके देखें थोड़ा सा, 3 × 10⁻, अच्छा मैं मास ले रहा था 10 की पावर -50, तो इसको थोड़ा सा चेक करेंगे तो आएगा यहाँ पे 10 की पावर ही चेक करते हैं अभी, 34 -8 -42, तो 10 की पावर +8 में आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो ये वेवलेंथ जो है ये विजिबल हमें दिखेगी। तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने जो भी ऑब्जर्व किया इस लेक्चर में, छोटा सा हमारा जितना लेक्चर हुआ है, इसमें पहले तो ये है कि कोई भी बॉडी के दो नेचर होंगे, एक होगा पार्टिकल नेचर, एक होगा वेव नेचर। ठीक है, और पार्टिकल नेचर को कौन शो करेगा? पार्टिकल नेचर को शो करेगा हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, पार्टिकल नेचर को शो करेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसको कौन शो करेगा? वेव नेचर को। दिस इज शोन बाय डेविसन जर्मन। तो डेविसन जर्मन का एक एक्सपेरिमेंट था, वो रिमूव कर दिया गया अब CBSE की तरफ से। तो दैट एक्सपेरिमेंट विल शो द वेव नेचर। लेकिन इसका हाइपोथेसिस किसने दिया? डी ब्रोगली ने।
और डी ब्रोगली का जो रिलेशन था वो मैंने आपको बताया अभी। सो डी ब्रोगली का रिलेशन, और दैट इज़ इम्पॉर्टेंट वन। और उसके बाद डी ब्रोगली का रिलेशन हमें बताता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, दैट इज़ एच अपॉन मोमेंटम। तो मोमेंटम की वैल्यू पुट कर दी हमने एच बाई एम बी। तो काफ़ी कुछ है अभी सीखने को, तो ऐसा नहीं है, इस लेक्चर को पूरा देखेंगे तो काफ़ी कुछ आपको एंड तक मिल जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और कुछ और भी डेरिवेशंस वगैरह देखेंगे। सो दिस इज द रिलेशन दैट इज गिवन बाय डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो डी ब्रोगली ने अपना एक हाइपोथेसिस दिया कि कोई भी बॉडी जो मास, जिसका मास होगा और जो मूव करेगी, ठीक है, मास भी होना चाहिए और उसकी मूवमेंट भी होनी चाहिए, देन उसके पास क्या होगी, कोई ना कोई वेव नेचर होगी। सो मास एज वेल एज दैट बॉडी शुड मूव। तो मोमेंटम भी तभी होगा अगर बॉडी मूव करेगी, अदरवाइज मोमेंटम नहीं होगा। तो आई थिंक इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन मोमेंटम एंड दैट इज एच अपॉन एम वी, और दिया किसने, ये डी ब्रोगली ने। नाउ लेट्स सपोज, हाँ शो कौन करेगा, जो लाइटर बॉडी होगी, जो भी लाइटर बॉडी होगी, हैवी बॉडी शो नहीं करेगी, जिसका मास 100 kg होगा, दैट बॉडी विल नॉट शो द वेव नेचर। वेव नेचर शो करेंगे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, है ना, स्मॉल इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन है या फिर उससे भी कोई छोटा पार्टिकल हो सकता है, तो उस टाइप के जिनका मास माइनस में हो, जैसे इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 3.1 इंटू 10⁻⁻31। तो इस तरह का मास होता है इलेक्ट्रॉन का, आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है 10⁻⁻31 होती है। तो जिसका भी मास बहुत स्मॉल होगा, द बॉडीज हैविंग वेरी लेस मास, जिनका मास बहुत कम होगा, दैट बॉडीज विल शो द दैट बॉडीज विल शो द वेव नेचर। तो वो बॉडीज जो हैं वो वेव नेचर को शो करेंगी। इतना आपको क्लियर हो गया आई थिंक। अब चलो अब एक हम और देखते हैं। सपोज हमें क्या दिया, हमें बॉडी जो हमें है बॉडी की काइनेटिक एनर्जी दे दी, ठीक है। सपोज काइनेटिक एनर्जी इज गिवन टू अस, काइनेटिक एनर्जी इज गिवन टू अस। तो काइनेटिक एनर्जी हमें दे दी, हमें बोला उसकी वेवलेंथ बताओ कितनी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी नाउ चेंज, काइनेटिक एनर्जी हमें चेंज करके, मतलब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दे दी। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, देखो हाफ एम वी स्केयर। तो हाफ एम वी स्केयर। तो अगर हम यहाँ से v की वैल्यू निकालें, वेलोसिटी, दैट कम्स आउट टू बी 2ke, मतलब 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, डिवाइड बाय m, एंड दिस होल इज अंडर रूट। तो ये अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। आई होप जहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए। वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2ke बाय m, वेयर ke इज द काइनेटिक एनर्जी। तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम लैम्डा में पुट करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी था ना। सो लैम्डा वाज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी। तो यहाँ पे m तो ठीक है, साथ में मैं क्या करूँगा, v की वैल्यू पुट करूँगा, दैट इज अंडर रूट 2ke बाय m। थोड़ा सॉर्ट आउट करेंगे, देन हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट एच बाय अंडर रूट 2 m इंटू के ई। तो के ई वहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो m से देखो यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे m की पावर 1 है और यहाँ पे 1/2 है। तो आफ्टर सॉल्विंग यू कैन सी लैम्डा इज इक्वल टू फाइनली h अपॉन अंडर रूट 2me। कई बार क्वेश्चंस मिलते हैं इसमें, ठीक है। एंड अगर कहीं पोटेंशियल मिलेगा तब भी हम देखेंगे कि अगर पोटेंशियल मिलता है काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन, तो उसके साथ हमारा कैसे हमने टैकल करना है। सो नाउ वी आर गोइंग टू, हम एक बार चलते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर जो बेस्ड होंगे ऑन द वेव नेचर। तो वेव नेचर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। जितना भी अभी तक हमने पढ़ा इसके बेसिस पे शायद हमें क्वेश्चंस मिल जाएं। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक यू टू पीडीएफ। एक पीडीएफ पे चलते हैं जो वेव नेचर के ओके, वेव नेचर पेंट, ओके।
So students, here you can see the रिलेशन क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं, तो जल्दी से इन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। आई रिक्वेस्ट यू कि आप वेट करना और यू हैव टू पॉज द वीडियो, एक बार पॉज करना और देन यू हैव टू ट्राई एट योर ओन एंड। एक बार आप खुद अपने एंड पे ट्राई करोगे, आफ्टर दैट यू हैव टू सॉल्व। आपने पहले एक बार खुद अपने एंड पे ट्राई करना है क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। सो ट्राई वंस एट योर ओन एंड। So first question available on the screen, for moving cricket ball. So for moving ball of cricket, the correct statement about de Broglie wavelength. तो डायरेक्टली हमसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया, अभी हम करके हटे हैं डेरिवेशन। सो डी ब्रोगली ने हमें क्या बताया था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। बट स्टूडेंट्स हेयर वेलोसिटी इज नॉट गिवन। देखो किसी भी रिलेशन में वेलोसिटी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। एंड ही हैज़ गिवन समथिंग, उसने क्या लिखा हुआ है, ई। सो ई इज़ व्हाट, यहाँ पे बच्चे आपको ये समझना होगा दैट ई इज़ काइनेटिक एनर्जी। ई इज़ व्हाट, ई इज़ द काइनेटिक एनर्जी हियर। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है ई। सो ई इज़ व्हाट, ई इज़ द काइनेटिक एनर्जी। तो अभी हम करके हटे हैं लैम्डा इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्र वाली डेरिवेशन जो है, वहाँ से हमें क्या प्रूव हुआ था, एच अपॉन, फाइनली वी गॉट लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m आया था हमारे पास। 2m के साथ हमारे पास क्या थी, कनेटिक एनर्जी। ओके, सो कनेटिक एनर्जी वाज देयर। तो एक बार हम चेक करें कोई ऑप्शन मैच करता है। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर सच बिग पार्टिकल। हाँ बट बच्चे हम आंसर को ये मार्क करेंगे एच अपॉन 2m इंटू ई, ठीक है। तो ये मार्क करेंगे, तो एप्लीकेबल तो है हमारा स्टेटमेंट, तो हमें मिल तो सकती है वेवलेंथ। ऐसा नहीं है कि हम वेवलेंथ नहीं बना सकते। हाँ वेवलेंथ ऑब्जर्व हो हमें ना हो, दैट इज़ अ डिफरेंट पॉइंट, बट हम वी कैन फाइंड द वेवलेंथ। तो वेवलेंथ के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एच अपॉन अंडर रूट 2me, वेयर E इज द काइनेटिक एनर्जी। E क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। आई होप इट इज़ क्लियर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, H बाय अंडर रूट 2me। और E क्या है बच्चे, E टोटल एनर्जी नहीं है, E इज व्हाट, E इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर। First question is clear to all. B option is the right answer for first question. So now we are going to question number 2. Question number 2 that is on screen is the energy that should be added to an electron to reduce its de Broglie wavelength from 1 nanometer to 0.5 नैनोमीटर। तो कुछ बोल रहा है हमें कि एनर्जी कितनी ऐड कर दें, कितनी रिमूव कर दें। काफ़ी हो सकता है अच्छा क्वेश्चन बने, तो एक बार ट्राई करेंगे जी सारे पॉज करके, ठीक है। आई रिक्वेस्ट यू कि एक बार यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई एट योर ओन एंड। एक बार ट्राई करो फिर देखते हैं, है ना। ट्राई एट योर ओन एंड, एक बार ट्राई करो बच्चे। लेट्स सी द सोल्यूशन। चलो अब एक बार ट्राई कर लिया आपने, तो जल्दी से सोल्यूशन की ट्राई करें। तो लेट्स सपोज वेवलेंथ है हमारे पास 1 नैनोमीटर, ठीक है, 1 नैनोमीटर। चलो पूरा ही लिख लेते हैं नैनो को भी, ठीक है, वैसे दोनों नैनो में ही हैं। तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, अभी मैं लिख रहा हूँ एच बाय अंडर रूट 2, मास तो हम मास ही लेंगे, m इंटू ई, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, तो दूसरी वैल्यू मेरे पास है, द सेकेंड वैल्यू आई हैव इज 0.5। तो 0.5 नैनोमीटर मीन्स 1/2। तो इसको क्या लिखेंगे, 1/2। आप 0.5 भी लिख सकते हो, ऐसा कोई पर्टिकुलर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सो सेकेंड वैल्यू वी हैव, एक बार सेकेंड वैल्यू देखें। सेकेंड वैल्यू इज़ 1/2 इज इक्वल टू, लेकिन ये है कब, जब एनर्जी क्या हो गई, एनर्जी दैट शुड बी एडेड टू इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी इंक्रीज करने पे हमें दिख ही रहा है, एनर्जी इंक्रीज करेंगे तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो
तो एनर्जी को इंक्रीज करना है और कितना इंक्रीज करना है यही पूछा है। तो एक बार देखो ध्यान से, 1/2 इक्वल टू, ठीक है, 1/2 इज इक्वल टू एच तो हमारा सेम रहेगा, मास भी हमारा सेम रहेगा। व्हाट ही इज चेंजिंग द एनर्जी। तो √2m इंटू ई प्लस के ई प्लस के लिख लें, हाँ ई प्लस एन लिख लेते हैं नहीं तो, ठीक है, ई प्लस एन। तो एन क्या है, न्यू एनर्जी जो हमने ऐड की है। ही इज़ आस्किंग अबाउट एनर्जी शुड बी एडेड। तो हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो एनर्जी हमने ऐड की है। आई होप इट इज़ क्लियर। सो लेट्स टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं और 1 को 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो एक बार चेक करें क्या आता है हमारे पास। चलो एक काम करते हैं, स्केलिंग बोथ द साइड कर देते हैं बिकॉज वी हैव टू, हमारे पास अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। स्केलिंग बोथ द साइड, दोनों साइड को स्केयर कर दो, इसको भी स्केयर कर दो, इसको भी स्केयर कर दो एंड इसको भी स्केयर कर दो, ठीक है। सभी साइड्स का स्केयर कर देंगे फिर डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो डिवाइड दिस इक्वेशन विद दिस वन। तो फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे, एक बार चेक करते हैं अभी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा 1/1/4। तो 1/1/4, एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, अंडर रूट बचेगा, अंडर रूट भी हमारे पास कैंसिल हो गया था, एच स्क्र से एच स्क्र भी कैंसिल हो जाएगा। हेयर वी हैव लेफ्ट विद ई प्लस एन, यहाँ पे हमारे पास बचेगा ई प्लस एन। बच्चे ये डेरिवेशन डिवीज़न आपको करनी पड़ेगी। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड किया है हमने, ई प्लस एन और यहाँ पे क्या है ई, ठीक है, ई प्लस एन इज इक्वल टू ई। तो हमने यहाँ पे अभी चेक करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा ऊपर, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे कर रहे हैं हम, दैट इज इक्वल टू 4/1। तो नाउ वी हैव टू सॉल्व, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4e, ठीक है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके हम देखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा n इक्वल टू 3e। चेक करना बच्चे, n इक्वल टू 3e हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं अभी आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा कि ये आंसर कैसे सही है। सो न्यू एनर्जी इज 3 टाइम्स ऑफ, न्यू एनर्जी दैट शुड बी एडेड वो कितनी होगी, 3 टाइम्स ऑफ अर्लियर। तो अभी मैं आपको प्रूफ भी करके बताऊंगा। दिस इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ इनिशियल एनर्जी। तो अभी मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा, ठीक है, थ्राइस ऑफ इनिशियल एनर्जी। तो एक बार नोट कर लें यहाँ तक, ठीक है। अगर आपने अभी तक नोट कर लिया है तो अच्छी बात है। अभी मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। 1 इज इक्वल टू, ठीक है, 1 इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा ले लिया हमने, ठीक है। पुरानी वेवलेंथ इज इक्वल टू h बाय अंडर रूट टू m इंटू ई। तो वहाँ पे ई क्या है, कनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब मैंने क्या किया देखो, नेक्स्ट टाइम क्या किया मैंने यहाँ पे λ/2 करना है बिकॉज मेरी वेवलेंथ कितनी हो गई है, 1 से हाफ हो गई है ना, 1/2 हो गई है। दिस इज 0.5, तो दिस इज 1/2 और पहले कितनी थी, फ्रॉम 1 नैनोमीटर, तो पहले 1 नैनोमीटर थी। तो दैट मीन्स मुझे λ/2 करना है, तो दैट मीन्स मुझे यहाँ पे 2 लेके आना पड़ेगा। और 2 कब आएगा, जब मेरे पास यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, है ना। एनर्जी 4 हो जाएगी तभी अंडर रूट के बाहर 2 आएगा और बाकी हमारे पास लैम्डा बच जाएगा। तो यहाँ पे 4 टाइम्स एनर्जी करनी होगी। तो चेंज कितनी होगी, देखो पहले एनर्जी ई है तो नई ऐड कितनी होगी, न्यू एनर्जी विल बी इक्वल टू, तो 3 टाइम्स ई ऐड करेंगे हम। तो दैट मीन्स जो 3 टाइम्स ई ऐड कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड द थ्राइस ऑफ इनिशियल एनर्जी। तो थ्राइस ऑफ इनिशियल एनर्जी हमें ऐड करना होगा। बच्चे एक बार ट्राई करोगे अपने एंड पे, बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, अगर थोड़ा दिमाग लगा के देखोगे बहुत अच्छा लगेगा। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर सेकंड क्वेश्चन। 2 इक्वेशंस बनानी है, मैं आई एम रिपीटिंग अगेन। एक बनेगी लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2me, ठीक है। और इसमें अगर वैल्यू पुट करनी है लैम्डा की, इसको पुट कर देना 1 नैनोमीटर, ठीक है, 1 नैनोमीटर।
हाँ, दूसरी इक्वेशन देखो कौन सी बनेगी। द सेकेंड इक्वेशन विल बी लैम्डा 2, इसको लैम्डा 2 ले लो, चलो इसको लैम्डा 1 ले लो। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू लैम्डा, हाँ अब चेंज कैसे हुई, मास तो चेंज नहीं हुआ, चेंज क्या हुआ, चेंज हुई एनर्जी। तो एनर्जी को क्या किया, इनका एनर्जी को इंक्रीज कर दिया। क्यों इंक्रीज कर दिया, क्योंकि रिड्यूस करना था देखो, और एनर्जी इंक्रीज करेंगे तो वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी। दिस इज अंडर रूट 2m, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने e प्लस एन लिख दिया, ठीक है। इसके बाद इन दो इक्वेशंस को डिवाइड कर लेना, e प्लस एन, और थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देखोगे, स्केयरिंग बोथ साइड्स करनी पड़ेंगी बिकॉज दिस इज इक्वल टू 1/2 नैनोमीटर। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन पार्ट है, अगर आप अच्छे से करके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हम 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं, 2 क्वेश्चंस और करेंगे, बाकी की क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर एंड सेकेंड क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, हमें फॉर्मूला बताना था काइनेटिक एनर्जी के साथ वेवलेंथ का क्या लिंक है, तो वो फार्मूला भी आई थिंक क्लियर होगा। और सेकंड क्वेश्चन जो था कि कितनी एनर्जी हम ऐड करें कि जो एनर्जी वेवलेंथ है वो 1 नैनोमीटर से चेंज होकर 0.5 नैनोमीटर रह जाए, तो वो भी आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो 2 चीज़ें अभी तक हमने करी हैं, 2 को, एक डेरिवेशन हमने देखी कि किनेटिक, पहले हमने देखा कि डी ब्रोगली ने हमें क्या बताया, उसके बाद अगर हमें किनेटिक एनर्जी गिवन हो तब हम वेवलेंथ को कैसे फाइंड आउट करेंगे। और उसके बाद हमने देखा एक अच्छा सा न्यूमेरिकल जिसमें वेवलेंथ चेंज हो रही थी और हमसे पूछा था कि कितनी नई एनर्जी ऐड होगी, मीन्स पहली एनर्जी जो है वो तो है ही है, उसमें नई कितनी एनर्जी ऐड होगी, दैट ही इज आस्क्ड इन दिस सेकेंड क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं और थोड़ा सा हमने डेरिवेशन का पार्ट भी देख लिया है। तो चलो एक बार पोटेंशियल वाला क्वेश्चन हम स्किप करेंगे क्योंकि ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, एक अच्छा क्वेश्चन मिला है हमें, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है और उनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम है। हमसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला है, क्वेश्चन नंबर 4 वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो जल्दी से देखें एक बार, दोनों की वेवलेंथ क्या है, सेम। सो लैम्डा इज इक्वल टू, देखो अब करना कैसे है ना क्वेश्चन को, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। तो लैम्डा इज इक्वल टू, चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लैम्डा ई, मेरे पास लैम्डा ई क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लैम्डा इज व्हाट, लैम्डा ई इज द मास ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज इक्वल टू एच बाय, तो देखो एच बाय अंडर रूट 2m इंटू ई। तो ई इज व्हाट, ई इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आई एम राइटिंग हियर ई। सेकेंड थिंग लैम्डा पी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, प्रोटॉन का हमने लिखा h बाय अंडर रूट 2 mp इंटू ई पी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, ये लैम्डा ई। अब देखो लैम्डा ई और लैम्डा पी दोनों इक्वल हैं, लैम्डा ई एज वेल एज लैम्डा पी, ये दोनों इक्वल है। दैट मीन्स जो मेरी राइट हैंड साइड वाली टर्म्स हैं वो भी इक्वल होंगी अगर लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म सेम है। इफ आई एम सेइंग कि लैम्डा ई और लैम्डा पी इक्वल है, दैट मीन्स जो राइट हैंड साइड वाली टर्म्स है दैट शुड बी ऑल्सो इक्वल। तो अब हम कैलकुलेशन पे चलते हैं, थोड़ा सा हम कैंसिल भी कर दें, एच कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ हम कहाँ पहुँचे हैं, ठीक है। नाउ वी आर लेफ्ट विद, हाँ अब हम बचे हैं अंडर रूट m इंटू ई, थोड़ी सी कैलकुलेशन पार्ट है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह, m इंटू ई इंटू ई, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ई के मैं ऑब्लिक लिख रहा हूँ। नेक्स्ट इज मास ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन है और यहाँ पे क्या है, एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, काइनेटिक एनर्जी है ना। अब मैं दोनों साइड को क्या कर रहा हूँ, आई एम स्केयरिंग बोथ साइड्स, मैं दोनों साइड को स्केयर कर रहा हूँ ताकि थोड़ा मुझे
ईजी हो जाए, ठीक है। आई एम स्केयरिंग बोथ द साइड्स, तो स्केयर कर दिया बोथ साइड्स का, ठीक है। इसके बाद मेरे पास क्या आया, ई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। मैंने थोड़ा सा रीअरेंज किया है, यू कैन सी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ, दिस इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, मास ऑफ प्रोटॉन टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ दिस रेशो इज ग्रेटर देन 1, ये रेशो क्या है बच्चे, दिस रेशो इज ग्रेटर देन 1। जिनको नहीं पता दे हैव टू नो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चलो इरेज करते हैं एक बार, वेट फॉर 1 मिनट, वेट व्हाट आई एम सेइंग हियर, व्हाट आई एम सेइंग कि मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन इज इन टर्म्स ऑफ 10⁻⁻⁻27 and mass of electron is in terms of 10⁻⁻31. So what I am saying here, I am saying this ratio, I am again showing by marking this ratio mp by me, this ratio is greater than 1, तो ये greater than 1 होगी। चलो एक बार थोड़ा सा क्लियर करें दोबारा से, बोर्ड थोड़ा सा साफ हो जाएगा। सो दिस रेशो इज ग्रेटर देन 1, ये तो हमें पता लग गया, दिस रेशो इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स दिस शुड बी ऑल्सो ग्रेटर देन 1। तो अगर राइट हैंड साइड बड़ी है 1 से, तो लेफ्ट हैंड साइड भी तो बड़ी होगी 1 से, ठीक है। सो अगर ई बाई ई पी बड़ी है 1 से, दैट मीन्स कनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की जो कनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की कनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जिसकी कनेटिक इलेक्ट्रॉन्स का मास कम है ना, तो मास कम होने से वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन वेवलेंथ ज़्यादा होने को कंपनसेट कौन करेगा, कनेटिक एनर्जी, जिनको अभी मैं एक बार दोबारा समझाऊंगा फिर से, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट हेयर लैम्डा इक्वल टू, ठीक है, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन √2 m इंटू ई, ठीक है। अब देखो बच्चे होगा क्या, एक्चुअली होगा क्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ हमें सेम करनी है, बट इलेक्ट्रॉन का मास कम है, तो मास कम होने से वेवलेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा, वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी ना। और उस वेवलेंथ को डिक्रीज़ कौन करेगा, वो डिक्रीज़ करने के लिए हमें क्या चाहिए, कनेटिक एनर्जी। तो कनेटिक एनर्जी का हमें डायरेक्टली भी अगर हम कहीं से हिट एंड ट्रायल लगाते तो हमें मिल जाता कि कनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की, कनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रेटर देन द कनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। तो डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर बनेगा जी। जिनको एक बार कहीं भी डाउट लगता है दे कैन आस्क मी अगेन, एक बार दोबारा पूछना, क्योंकि इस टॉपिक में हो सकता है प्रॉब्लम कहीं पे आपको आए, क्योंकि इस टॉपिक में हो सकता है प्रॉब्लम आपको मिले कहीं। सो लैम्डा देखो ध्यान से, जैसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया, एक बार करके देखना। बाकी हिट एंड ट्रायल अगर देखना है तो यहाँ से देख सकते थे कि कनेटिक एनर्जी जो है दोनों की सेम है, बट इलेक्ट्रॉन का मास कम है, तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ ज़्यादा होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ ज़्यादा होने से हमें ज़्यादा नहीं करनी और उसको डिक्रीज़ करना है, तो कनेटिक एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। तो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन की कनेटिक एनर्जी प्रोटॉन के कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ग्रेटर देन द कनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन। तो प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन कनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगी। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया होगा आपको। अगर कहीं भी डाउट लगता है देन यू कैन आस्क मी अगेन। कहीं पे भी डाउट लगता है बच्चे दोबारा आप पूछना, क्योंकि बिकॉज पूछे भी ना आई थिंक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो एक क्वेश्चन और हम देखेंगे अगर हमें इस टाइप का मिलता है जिसमें एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं। हाँ जी बच्चे, एक और अच्छा क्वेश्चन मिला है, इफ एन इलेक्ट्रॉन, हाँ नया क्वेश्चन बिल्कुल, जी हाँ कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बच्चे सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है,
and if an electron and a photon propagate in the form of waves having the same wavelength, it implies that they have the same, उनके पास सेम एनर्जी होगी, वेलोसिटी होगी, मोमेंटम होगा या एंगुलर मोमेंटम होगा। तो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उनके पास क्या ऐसा होगा जिससे वेवलेंथ सेम हो जाएगी। तो वी हैव स्टडीड दैट लैम्डा इज इक्वल टू, वी हैव स्टडीड अबाउट लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन मोमेंटम, यही था हमारे पास। तो एच इज कांस्टेंट हेयर, एच तो हमारे पास कांस्टेंट है, एच इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग, एच कहीं नहीं चेंज हो रहा है, दिस इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। सो दैट मीन्स विद द चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम अगर चेंज होगा तो वेवलेंथ चेंज होगी। बट हमने क्या उसमें क्या बोला क्वेश्चन में, इफ़ द इलेक्ट्रॉन एंड द फोटोन, तो फोटोन आपको पता है लाइट का पार्टिकल होता है जिसके पास काफ़ी एनर्जी होती है, तो उसका भी कोई मास होता है, रेस्ट मास 0 होता है, बट उसका वैसे कोई मास होता है जब वो मूव करता है। सो इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन की वेवलेंथ सेम है, दैट मीन्स एच के साथ तो कोई लिंक है नहीं, दैट मीन्स उनका मोमेंटम जो है, दिस मोमेंटम फॉर दीज टू वेव्स, टू पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन के लिए भी और फोटोन के लिए भी मोमेंटम जो है दोनों का सेम होगा। तो अगर सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हो, बट मेरे ख्याल से यहाँ पे आंसर जो है आपका मोमेंटम आना चाहिए। सो मोमेंटम विल बी द एग्जैक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए जो आपका आंसर है दैट विल बी, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपका आंसर रहेगा मोमेंटम। फॉर द क्वेश्चन नंबर 5 योर आंसर विल बी मोमेंटम, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। बी ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। सो नाउ वी आर मूविंग टू एक और क्वेश्चन, देखिए अगर कोई इस टाइप का मिलता है हमें, अदरवाइज वी हैव टू सी। ओके चलो एक अच्छा क्वेश्चन इजी वाला आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से पॉज करें और वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 ऑन स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 6 that is on screen, can you try this one? You have to pause the video and you have to try at your own end. We are waiting. Okay, I hope you have tried at your own end. I hope you have tried. So I hope students you have tried at your this question, and we know energy lambda is inversely proportional to kinetic energy. So kinetic energy is inversely proportional to lambda. So lambda is here. Here we have lambda, and this lambda is equal to h by under root 2 m into kinetic energy. So so this is the kinetic energy. So kinetic energy is inversely proportional to lambda. So what he is saying, when the kinetic energy of an electron is increased, so if we increase the kinetic energy, the wavelength associated with it, so wavelength, if we increase the kinetic energy, so denominator is increasing, that means lambda will decrease. तो lambda नीचे वाली वैल्यू डिक्रीज हो इंक्रीज होगी,
दिस डिनोमिनेटर विल इंक्रीज देन ऑब्वियसली लैम्डा विल डिक्रीज, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, डिक्रीज। सो ऑप्शन नंबर लैम्डा विल डिक्रीज। सो ऑप्शन नंबर बी, option number B will be the right answer. So B will be the right answer for question number 6. So I hope it is clear. For the question number 6, option number B is the right answer. So let's see one or more question अगर इस टाइप से हमें मिल जाए। The kinetic energy of free electron double. ओके तो बच्चे ये क्वेश्चन करना, इफ द kinetic energy of free electron double, तो kinetic energy को क्या कर दिया, डबल। ठीक है, डबल, वी हैव डबल्ड द kinetic energy, kinetic energy को डबल कर दिया है इस क्वेश्चन में। सो kinetic लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय, सो वी हैव स्टडीड ऑल द क्वेश्चंस अबाउट kinetic energy। kinetic energy के साथ जितने भी लिंक थे हमने ऑलमोस्ट सारे देख लिए। सो एच अपॉन टू एम इंटू kinetic energy, kinetic energy वी आर राइटिंग इट एज के ई। सो के इज द kinetic energy। अब देखो kinetic energy को क्या कर दिया, डबल। तो यहाँ पे मैंने 2 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, और वेवलेंथ, पहले वाली वेवलेंथ का क्या हो गया, पहले वाली वेवलेंथ जो लैम्डा थी उसके नीचे क्या आ जाएगा, √2। सो चेंजेस बाय द फैक्टर, चेंज कितना हुआ फैक्टर, 1/√2। देखो वेवलेंथ क्या हो गई, डिक्रीज, है ना, वेवलेंथ डिक्रीज हो गई। So this is 1/√2. So option number D will be the right answer. Option number D will be the right answer. 1/√2 आंसर आएगा बच्चे इस क्वेश्चन का। सो आई होप आपको काफ़ी कुछ अभी तक हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। और kinetic एनर्जी को अगर 4 टाइम्स कर देंगे तो भी फैक्टर कितना आ जाएगा, अगर kinetic एनर्जी को 4 टाइम्स इंक्रीज कर दें, 4 टाइम्स कर देंगे, जैसे यहाँ पे डबल बोला है तो यहाँ पे 4 टाइम्स बोल देता तो आंसर आ जाता 1/2। इसी तरह से अगर 8 टाइम्स बोल देता तो कुछ और आंसर आ जाता, 9 टाइम्स बोल देता तो 1/3 फैक्टर आ जाता। तो फैक्टर आई थिंक क्लियर, फैक्टर फॉर दिस आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, 1/√2। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। सो इसके बिना बच्चे बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं, 1-2 क्वेश्चन हैं, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू पोटेंशियल, तो पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने जो बेसिकली कंसेप्ट था हमारा, द मेजर कंसेप्ट जो हमने देखा यहाँ पे, दैट इज़ 2 चीज़ें मैं मेंशन करूँगा यहाँ पे। सबसे पहले वी हैव स्टडीड के वेव नेचर हमें शो किसने की, तो वेव नेचर इज शोन बाय डी ब्रोगली ने हमें अजम्पशन दी, दैट इज इक्वल टू एच बाय पी क्या था हमारा मोमेंटम, दैट इज इक्वल टू H/mv। तो मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट्स बता रहा हूँ यहाँ पे, H/mv। ठीक है, एंड आफ्टर दिस वी हैव स्टडीड, हमने देखा कि अगर हमें वेलोसिटी नहीं पता और हमें kinetic एनर्जी पता है, फिर हम लैम्डा को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो kinetic एनर्जी को इक्वल टू हमने हाफ mv² इक्वल टू kinetic एनर्जी कर दिया, वहाँ से v की वैल्यू निकाली, उस मेथड से हमने लैम्डा निकाला, तो हमारे पास आया h/√2m इंटू kinetic एनर्जी। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन था, इससे हमने काफ़ी कुछ देखा, और हमने ये देखा कि हैवी बॉडी की kinetic एनर्जी कैसे चेंज होगी, जो लाइट बॉडी है उसकी कैसे चेंज होगी। सो दिस इज़ द kinetic एनर्जी। तो kinetic एनर्जी को अगर इंक्रीज़ करोगे तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज। kinetic एनर्जी इंक्रीज, वेवलेंथ डिक्रीज। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमने देखे, उसके बिना हमने काफ़ी क्वेश्चंस देखे जो हमें मिले, और एक बार अगर उन क्वेश्चंस को आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो। ठीक है, सो दिस इज़ द स्क्रीन फॉर क्वेश्चंस। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द आंसर। तो एक बार आंसर डिस्कस कर लें। फॉर क्वेश्चन नंबर 1, फॉर द क्वेश्चन नंबर 1 योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसके लिए आपका आंसर आया था बी ऑप्शन, दिस विल बी द राइट आंसर। इसके बाद चलते हैं नीचे, सेकंड क्वेश्चन, इसके लिए आपका आंसर आया था ऑप्शन नंबर डी। तो जिनको भी डाउट लगे कहीं पे वो दे कैन आस्क अगेन। तो थर्ड क्वेश्चन हमने स्किप किया था बिकॉज इसमें पोटेंशियल है, ये हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की सेम थी, ओके। तो इसमें हमारा कंपनसेशन वाला था ना कंसेप्ट, कि इलेक्ट्रॉन की मास कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा है,
तो इलेक्ट्रॉन की किनेटिक एनर्जी ज़्यादा चाहिए हमें। सो किनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ ग्रेटर देन द किनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन से ग्रेटर चाहिए। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट इज इफ़ द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रोपोगेट, तो इनका क्या सेम चाहिए बच्चे, मोमेंटम सेम होगा। मोमेंटम सेम होगा तो वेवलेंथ दोनों की सेम हो जाएगी, बिकॉज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो एच अगर सेम है तो एच तो सेम ही रहेगा, नीचे वाली टर्म जो है दैट इज़ मोमेंटम। तो मोमेंटम को सेम कर दो, अगर मोमेंटम सेम हो जाएगा तो वेवलेंथ भी सेम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। हाँ, किनेटिक एनर्जी को, नेक्स्ट क्वेश्चन, किनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। तो काफ़ी क्वेश्चंस के एक बार मैं आंसर आपको रिव्यू बता रहा हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 7, किनेटिक एनर्जी को डबल कर दिया है तो फैक्टर क्या हो जाएगा, 1/√2। अगर किनेटिक एनर्जी को 4 टाइम्स कर देता तो फैक्टर होता 1/2। तो अंडर रूट वाला कंसेप्ट जो फार्मूला है दैट यू हैव टू रिमेंबर। एक 8th क्वेश्चन भी हमने स्किप किया है, 8th एंड 3rd क्वेश्चन हमने स्किप किए हैं, बाकी क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। एंड बेसिक कंसेप्ट वाज यूज्ड के लैम्डा इज इक्वल टू, आज जो हमने क्वेश्चंस ऑलमोस्ट किए, h/√2m इंटू कनेटिक एनर्जी। कनेटिक एनर्जी को कई जगह ई भी लिखा हुआ है। सो ऑन दिस फार्मूला वी हैव स्टडीड द क्वेश्चन, ऑलमोस्ट इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन थे जितने भी थे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू फील दैट दिस वीडियो इज़ यूजफुल टू यू देन यू कैन लाइक शेयर विद यूर फ्रेंड्स। एंड बाकी कल देखेंगे बच्चे, ठीक है। हाँ जी, ओके जी, थैंक यू सो मच।